Assalamualaikum everyone. My name is Kaleem Chima. I have been working as a freelancer for the past 4 years. I started back in 2020. Since then, I've been working as a UI UX designer. जो हमारा आज का सेशन है वो भी इसी पे है कि how we can provide services as a freelancer, and then also we can shift into job as well if we want. Okay. So here are some of the contents that we are going to cover. First of all, we'll go through the UI UX introduction. And is it like some students might have that question in their mind के UX UI क्या ये एक lucrative path है? Should we continue in that? We'll discuss that as well, and then we will move towards freelancing, how we'll get started, how we will build our portfolio, then negotiation tactics, then we'll learn how we can sustain and scale, because mostly जो लोग होते हैं फ्रीलांसिंग को एज अ साइड हसल लेके चलते हैं, नॉट एज अ बिजनेस. विल लर्न के हाउ वी कैन कंटिन्यू डूइंग फ्रीलांसिंग एंड मेक अ कैरियर आउट ऑफ इट. And then I will also discuss a few things that I have learned during my job, कि freelancing और job कैसे different होती है. Then we can have our Q&A. So my introduction, जैसे मुकेश भाई ने बताया कि मेरा बैकग्राउंड आईटी की फील्ड से नहीं है, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की फील्ड से है, एंड दैट टू टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जिसमें लाइक आईटी का कोई ताल्लुक नहीं होता. इट इज कम्प्लीटली मशीनरी एंड ऑल दैट. बट आई स्टार्टेड सेल्फ लर्निंग बैक इन 2020, जब कोरोना था. यस, इट वाज कोरोना. So then I started as a free photo editor, but photo editor, uh, I failed in that. And the reason I'm mentioning failed is I'll discuss about it later as well, because failing is okay. If you do not fail, you will not learn how to succeed. So we'll discuss it about it more later on. Then I shifted to UI UX in after like 3 to 4 months in May 2020, and since then I've been working as a freelancer as a UI UX designer. Okay, so the first things, सबसे पहले कोई भी फ्रीलांसिंग के बारे में पूछता है तो उसके ज़हन में यही क्वेश्चन आता है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं. So there is no limit to that. You can earn as much as you want. Okay, since 2020 I have earned over 90,000. Exact figure नहीं है मेरे पास कि कितनी, but I have earned over 90,000. And मैं 2022 में फुल टाइम गया था. उससे पहले चूंकि मैं यूटी में स्टूडेंट था, तो मैं अपनी डिग्री कंटिन्यू कर रहा था, और लाइक रात के टाइम पे फिर मैं फ्रीलांसिंग करता था. बट since 2022 I moved to full time. But the one thing that UI UX is like, it is growing proportionately. By 2030, it is expected to grow to $53.8 billion in the US only. Overall, in the world, there is no figure, but it is just the US figure at the moment. So you can imagine how big this industry is going to be. So moving towards like the importance, क्योंकि कोई भी चीज ग्रो तब करती है जब उसकी इम्पोर्टेंस होती है दुनिया में. अगर किसी चीज की इम्पोर्टेंस नहीं है, इवेंचुअली लोग उसको स्किप कर देंगे. हाँ, स्टार्टिंग पे उसके बारे में थोड़ा क्रेज होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये कोई चीज है या न्यू, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं. बट अगर उसकी बेनिफिट्स नहीं होते दुनिया में, इट eventually goes out. बट यूएक्स यूआई यूएक्स का फायदा ये है कि मोस्टली अब आप देखेंगे कि जो बड़ी कंपनीज है लाइक मेटा, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, all are trying to make their user experience as much better as they can. क्योंकि अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, no one will stay on their platform and eventually they will lose business. Okay, so
better UX, it means better return on investment, means better uh, business. So it, like, this is important, and it is not going away anytime sooner. And I would even say that it is not going away at all, because user experience is always going to matter. uh, कोई टूल्स आ सकते हैं जिसके एआई टूल्स आ सकते हैं, लेकिन उनको स्टिल यूज करने के लिए वी विल नीड द स्किल्स दैट I know that you guys might have learned in the course as well. So that is going to be a big part in that. Moving forward, we will know के freelancing path क्या है. So the first thing is getting started. We'll discuss के imposter syndrome क्या होता है, and then we'll discuss के portfolio कैसे बनाना है, and there is a point के your ego is your enemy, and I will discuss it in detail, because my ego was my enemy when I started. If I knew that earlier, I would have been much more successful than I am right now. But still, देन वील डिस्कस के आप क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की. अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, इट डजेंट मैटर कि आपके पास जो वर्क रिलेटेड स्किल्स हैं वो कितनी अच्छी हैं, आप कितने अच्छे डिजाइनर हो, आप कितने अच्छे डेवलपर हो, इट डजेंट मैटर. क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं सही तरह से करते क्लाइंट के साथ, they will eventually skip you, and they will move forward to another person. Again, experience comes here as well, the customer experience, and then we'll learn how we can sustain and scale our business moving forward. So first thing first, getting started in freelancing. Mostly लोग सोचते हैं कि this is not the right moment. हमारा जो माइंड होता है वो ये कह रहा होता है कि हाँ नहीं, अभी कुछ हमें चीज सीखने की जरूरत है, एंड देन वील इवेंचुअली स्टार्ट. बट आपको अभी स्टार्ट करना है, and you guys will figure out the things later on along the journey, because जब तक आपको एक कोई प्रॉब्लम आ नहीं जाती, तब तक आप उसके बारे में जान नहीं सकते, और तब तक आप उसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते. सो इट इज recommended कि आप अभी स्टार्ट करें, एंड देन you guys will figure out along the way कि आप कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं. So imposter syndrome. uh, I had this syndrome when I started. मुझे यही लगता था कि I'm not a good designer at the moment. I should learn this. I should learn the animations. I should learn the prototype, the wireframing, and all that. I should be the best before I go into the market. And this is something that is keeping you all to not starting at all. So अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, अगर आप इसी सिंड्रोम के अंदर रहोगे, तो यू गाइस विल नेवर बी एबल टू स्टार्ट एट ऑल. क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता. हमें थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंस हम चीज़ें सीखते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड टू गेटिंग बेटर, गेटिंग परफेक्ट एट आवर जॉब. स्टिल हमसे बेहतर कोई ना कोई होगा, बट स्टिल we move ahead in our journey. So the first thing is getting over this syndrome, okay, and then we can move forward and learn along the way. इसमें अगर मैं uh, करीम भाई जाता तो so आपकी जो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है, इसमें मजे की चीज मैंने ये देखी है कि ये फ्रीलांस पे तो है ही है, ये जॉब्स पे भी होता है कि अक्सर बच्चों के साथ होता है. मेरे साथ भी कुछ जॉब्स पे ऐसा हुआ है कि जब इंटरव्यू भी क्लियर कर गए, जॉब मिल भी गई, ऑफर भी आ गई, ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तब बैठ के देख के लगता है कि हर कोई चीता है हमसे बेहतर ही है, और जेन में ये चीज आती है. तो वहां पे भी जो सा ये मैंने देखा है कि बच्चों को भी बड़ा फेस होती है ये वाली चीज की. जॉब पे भी जब सारा कुछ प्रोसेस से गुजर गए, आप आपको जो सा जॉब मिल गई है, आपको ऑफर लेटर आ गया, ये ऑलरेडी ज्वाइन, और उस टाइम पे बैठ के लगता है कि नहीं यार, आई डोंट बिलोंग हियर. exactly. And that is a
a very basic and common in most of the people. मेरे में भी था, but eventually मुझे start करना था क्योंकि मेरे पास कोई option ही नहीं था. तो uh, ये एक this this is the first website that I designed. ये मेरी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की है. you guys can see कि इसमें डिजाइन का बिल्कुल कुछ like I'm embarrassed at the moment कि ये मैंने डिजाइन की, but still मैंने डिजाइन की इसलिए कि मुझे स्टार्ट करना था. and then I started learning कि इसको कैसे बना सकते हैं. इसके अंदर you guys can see कि कोई अलाइनमेंट नहीं है, टेक्स्ट कुछ लेफ्ट लाइन है, कुछ सेंटर लाइन है, कुछ like there is no um, uh, the design rules are not being followed in this design, but still I started क्योंकि I had to get over that. This is another page of the same website, and you guys can see how ridiculous this is, but still अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, अगर आप फेल हो नहीं होगे, you guys can never learn how to succeed. Then we will move forward to building your portfolio. So the first thing in building your portfolio is Reid Hoffman, LinkedIn का co-founder भी हैं और chairman भी रहे हैं. So he said कि if you are not embarrassed by the first version of your product, you have started too late. मीनिंग कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप बेहतरीन के लिए बैठे रहोगे, आप बहुत लेट जाके मार्केट में आओगे. हो सकता है कि मार्केट में आपसे पहले कुछ लोग आ जाएं और वो बाय एक्सपीरियंस आपसे पहले सीख जाएं और वो चीजें इम्प्लीमेंट कर लें. ओके, सो यू गाइस नीड टू स्टार्ट राइट नाउ. अब बात आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें. हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, हमें कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो हम कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें. तो ये मुझ में भी जब मैं भी था तो मुझे भी एक इशू आता था. तो बट नाउ आप चैट जीपीटी को कमांड दें कि मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट ब्रीफ दो. आप उससे कमांड लें, देन आप उसके हिसाब से डिजाइन करें. ओके, द सेकंड थिंग of getting your portfolio piece is redesign a website that is already designed. I know a person जिसने एप्पल की जब एप्पल ने अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स लॉन्च किया था, तो ही रीडिजाइंड दैट पेज फ्रॉम स्क्रैच. और उसने इतना तो क्योंकि अब एक वहाँ वो मार्केट में एक न्यू चीज थी, हिट चीज थी, तो जो भी उसके बारे में बात कर रहा था दे वर गेटिंग हिट. So he redesigned that, and his portfolio went from very low to like this. So redesign the websites that are already uh, in the market and try के आप वो वाली वेबसाइट्स को रीडिजाइन करें जिनके बारे में कोई जानता है. क्योंकि अगर आप वो वाली वेबसाइट रीडिजाइन करेंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता, नो वन विल फोकस ऑन यू. एंड देन द लास्ट थिंग इज के आप प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, लाइक ड्रिबल पे, बिहेंस पे, और अपना पोर्टफोलियो शो करें. सो दिस इज हाउ यू गेट स्टार्टेड. Then moving forward, we will see कि मैंने जो आपसे बात की थी कि ego is your enemy, and it was my enemy as well. क्योंकि my ego was like keeping me away from getting rejected. मैं लोगों को रीच आउट नहीं कर रहा था. मुझे ये लग रहा था कि मैंने अब चीजें सीख ली हैं, अब मुझे आके प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे. it 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 doesn't go like that. You'll have to reach out to people, you'll have to face rejections, you'll have to hear no right away at your face, but it is the part of the process. And as much as you will do, you will get over it. Then at one point, rejected will mean nothing. अब
and I still get rejected a lot of time. मैं आपको एक आगे I have added an example कि I still get rejected a lot of time and that is fine क्योंकि ये part of the process है. बहुत सारे बिजनेसेस जो क्लोज करते हैं क्लाइंट्स को, वो पहले बहुत सारे क्लाइंट्स से रिजेक्ट होके फिर आगे आते हैं. सो अपनी ईगो को अपने सक्सेस के पाथ में नहीं आने देना, इसको साइड पे रखना है और देन मूव फॉरवर्ड. वन एग्जांपल इज कि अगर आप अब सॉरी अगर आपको अभी अभी प्रोजेक्ट्स चाहिए, देयर इज लाइक फेसबुक लिंक्डइन पे जाएं, सर्च करें कि जो आप आपकी सर्विसेज रिक्वायर करते हैं, ठीक है. मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे करता था कि मैं फेसबुक पे जाता था, मैं सर्च करता था कि लाइक फॉर टर्म्स के नीड यूआई यूएक्स डिजाइनर, वेब डेवलपर, और जो जिन लोगों ने पोस्ट की होती थी, बेशक 2-2 3-3 4-4 दिन पहले की भी पोस्ट होती थी, मैं उनको डायरेक्ट उनके डीएम्स में मैसेज करता था विदाउट हेजिटेशन. समटाइम्स एंड दे डोंट इवन नो मी, मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते. इट्स जस्ट कि उनको वो चीज रिक्वायर्ड है, मेरे पास वो चीज है, एंड मैं अपने पूरी हार्ड वर्किंग से वो चीज उनको प्रोवाइड करूंगा इफ दे चूज टू गेट स्टार्टेड विद मी. ओके, सो दिस इज कि आपने अपनी ईगो को, अपनी जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तान में आई हैव सीन के बहुत सारे लोग स्टार्ट नहीं करते या दूसरों को रीच करने से घबराते हैं. बट बिजनेस, एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू समवन हु नीड्स इट, राइट. अगर उसको चीज की जरूरत है और हमारे पास वो चीज है, then reaching out to them is not any harm to them and to us as well. Rejections होंगी, but it is a part of the process. Then communication. As I have discussed कि communication freelancing का की पार्ट है. फ्रीलांसिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप की कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होती. अगर आप क्लाइंट के साथ रेगुलर कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप क्लाइंट को टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, यू गाइस विल सी के क्लाइंट्स विल इवेंचुअली मूव अवे फ्रॉम यू. So these are three thumb rules. First, I have mentioned के timely respond करें. Then the second is, और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में लोग करते हैं कि they blame their clients के sometimes situations आती हैं कि they start blaming their clients. No, you don't need to do that. You just need to be respectful और उनकी सिचुएशन अंडरस्टैंड करें, क्योंकि उनकी आपके साथ कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं कि वो आपको आपके साथ बुरा रवैया रखेंगे. वो आप उनकी सिचुएशन समझे एंड देन कम्युनिकेट थ्रू इट एंड इवेंचुअली यू गेट गेट ओवर दैट. एंड द थर्ड थिंग इज जो कि मैंने बहुत लेट अपने करियर में देखी कि मैं बहुत कम चार्ज करता था वैसे. अभी लाइक 1-2 साल पहले तक ही मैं एक कंप्लीट वेबसाइट विद इन $1,000 बना देता था. और देन मुझे लगता था कि यार, अब चूंकि अब पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे अभी भी $1,000 कोई भी पे नहीं करेगा वेबसाइट के लिए. $1,000 तो क्या, दे वोंट इवन गो टू लाइक $200-300. बट मैंने जब दुनिया को देखा, आई हैव लर्न के बॉस, दुनिया के पास बहुत पैसा है. आपको जस्ट you just need to get out of their pocket. Okay, so quote higher than what you are going to charge. Okay, I'll discuss it in further in down the slides. Negotiation tactics. Communication के अंदर अगर आपके पास negotiation tactics नहीं है, you will see के you will work वे ऑन लाइक आप बहुत कम चार्ज करोगे और बहुत ज्यादा काम करके दोगे. और ये मैं करता आया हूँ पिछले 2-2.5 साल. मैंने ये काम किया, ऐसे ही काम किया, मैं बहुत कम चार्ज करता था. ओके, सो एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट रख लें कि हमने इस
इतने पैसों से कम काम नहीं करना। इससे अगर ज्यादा होगा तो हम काम कर लेंगे, लेकिन इससे कम होगा तो हम काम नहीं करेंगे। विल लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, या हम इन द मीन वाइल कुछ और चीज ढूंढ लेंगे। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार अभी काम तो आ नहीं रहा, तो चलो जितने पैसे मिल रहे हैं उतने में ही काम कर देते हैं, बाद में जब हम कोई और प्रोजेक्ट मिलेगा उससे ज्यादा चार्ज कर लें। लेकिन आप ये इस एक लूप के अंदर फंस के रह जाते हैं। आप हर प्रोजेक्ट को ऐसे ही करते हैं कि एक काम आता है, उस टाइम वो आपको कहता है कि नहीं मैं नहीं इतने का करके करवा सकता। एंड यू गाइस यू नो कि आप फिर कम से कम आप वो एक लूप होल के अंदर फंस जाते हैं और आप उससे नहीं निकल सकते। सो मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट, एक प्राइस सेट कर लें। देन एज आई मेंशन के कोट हायर देन व्हाट यू वांट टू चार्ज, बिकॉज अगर आप को उतना ही चार्ज करेंगे, कोट करेंगे, लाइक एक वेबसाइट है 3 पेजेस की, आप चाहते हैं कि उसके लिए आपके पास $750 के अंदर आप कर देंगे। और अगर आप 750 ही कोट करेंगे क्लाइंट को, एंड यू विल सी इन द स्लाइड्स, मैंने एक स्क्रीनशॉट्स भी ऐड किए हैं कि क्लाइंट आपके साथ निगोशिएट करने की कोशिश करेगा और eventually you will have to go down. So quote a little bit higher and then negotiate. और negotiation का पहला रूल ये है कि दोनों साइड्स जो हैं वो जीतनी चाहिए। इन द फॉलोइंग स्लाइड आई विल शो इट टू यू। ओके, सो the thing that I mentioned कि the lowest you can go and this is the highest the client can pay. Okay, इससे ज्यादा वो नहीं पे कर सकता एंड इससे ज्यादा इससे कम आप नहीं चार्ज कर सकते। बट एवरीथिंग इन बिटवीन इज अ विन फॉर बोथ। अगर आप कहेंगे कि मैं इस अमाउंट से ज्यादा चार्ज करना चाहता हूँ, सो इवेंचुअली यू विल लूज द डील। और अगर क्लाइंट कहता है कि मैं इससे कम पे करना चाहता हूँ, eventually that deal will also be lost as well. But everything in between is a win for both. And this is the rule number one of negotiation के दोनों साइड्स को जीतना चाहिए। अगर कोई एक साइड लूज फील करती है, that project is not going to be a successful project, because later down the path there will be issues uh, related के you charged us higher, or if you charge them lower you will not do great work. Okay, so you need to charge something in between so that it is a win for both. अगली slide में, this is a screenshot of my Fiverr conversation with a client, or I have hidden the name, but as you can see so basically the project was 3 pages project, and I per page I charge $250। तो मेरा जो मिनिमम था वो $750 था कि 750 से मैं नीचे नहीं जा सकता था। बट आई कोटेड हिम के $850, बिकॉज मुझे पता था कि ही इज गोइंग टू निगोशिएट। बट टू माई सरप्राइज ही सेड के $325, or and that was not uh, 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 like profitable business for me. So I said के नहीं यार मैं नहीं कर सकता। मैंने उसको 10% डिस्काउंट दिया, एंड देन आई सेड के 775 पे, बट ही स्टिल सेड के नहीं। एंड यू कैन सी के दिस इज this trick is very common के clients यूज करते हैं कि आपको रुपीज में कन्वर्ट करके पैसे बताएंगे कि यार 1,05,000 पे हैं तो ये बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी, तो यू शुड डू दैट। बट यू शुडंट डू दैट, क्योंकि आप बाद में उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते कि $5,000 $10,000 कमाने वाले। ठीक है, यू शुडंट डू दैट। देन मैंने उसको अपनी फाइनल ऑफर बताई कि इस 750 से कम मैं नहीं कर सकता। अगर आपको आपके बजट में नहीं है, यू कैन फाइंड समवन एल्स। एंड यू कैन सी के मैंने उसको ऑफर की कि आई कैन रेकमेंड यू समवन, आई ट्राई टू हेल्प देम, बट स्टिल ही सेड के नहीं, द हाईएस्ट ही कैन गो इज 425। एंड आई सेड के ओके यार,
it is fine. The deal was lost in my mind. Okay, but 2 दिन बाद आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी को मैंने उसको ये मैसेज किया, एंड आई थॉट कि ये डील लॉस्ट है, बट 1 फरवरी को ही सेड के सेंड मी द प्रपोजल, एंड आई सेड के क्या बात है यार, प्रोजेक्ट डन. Okay, so this is how you negotiate with clients. क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये वो उसकी वही बात 1,05,000 वाली पे समझ के चल पड़ता, तो आई वुड हैव लॉस्ट like another 1 lakh or 150,000 rupees. Okay, but then we successfully did the project, and this is the screenshot. Okay, he accepted the project, and he also left the feedback. Then moving forward, how we can scale and sustain our business. The first thing is कि अपना अपने काम के अंदर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें. जब आप कोई प्रोजेक्ट पकड़ लें, आपको बेशक ये लगे कि पैसे कम हैं, लेकिन सिंस आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, तो अपना काम बेहतरीन करें. यू गाइस विल मेक जो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, आप किसी अगले प्रोजेक्ट में कर लेंगे, लेकिन जो काम आप करें वो बेहतरीन करें, क्योंकि बेहतरीन काम मीन्स रिटर्निंग क्लाइंट्स, मीन्स मोर बिजनेस. आपका एवरेज क्लाइंट वैल्यू, एसीवी ओवर द पीरियड इंक्रीज करती है. अगर आप एक मिनिमम सब एक बहुत लो लेवल काम करके देंगे, he might pay you for one time, but he is not going to come back. And believe me, getting more clients is way harder than getting the client that you already have. Okay, and then as I mentioned के referrals use करें. अब अगर आप एक अच्छा काम करेंगे तो clients आपको रेफर करेंगे, और वो जो रेफर्ड clients होंगे वो बहुत इजीली क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक ऐसे बंदे ने रेफर किया है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं. दैट मीन्स कि वो आपके ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं. ओके, तो रेफरल्स आप अचीव करें, और whenever you do a project, ask for referrals as well. आप क्लाइंट्स को एक लुक्रेटिव ये दे सकते हैं कि यू आर गोइंग टू आप उनको 10% डिस्काउंट दे देंगे अगले पे, या फिर 5% कैशबैक, के जो भी अगला क्लाइंट वो रेफर करेंगे जितने में भी क्लोज होगा 5% उसका वो आप उनको देंगे. इट इज अ टेक्निक टू गेट मोर प्रोजेक्ट, क्योंकि आप थ्रू एड्स या थ्रू टाइम आप क्लाइंट क्लोज करने की बजाय अगर आप ऐसे 5% अमाउंट दे के क्लाइंट क्लोज कर लें, दैट इज वे बेटर. एंड आई हैव सीन कि आप 5 के बजाय 10% भी दे दें तो इट इज अ वेरी गुड डील फॉर यू एज वेल. ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज रीच आउट टू योर प्रीवियस क्लाइंट्स. मैं आपको अगली स्लाइड में शेयर कर दूंगा कि हाउ यू कैन, जब मोस्टली आप देखेंगे कि इन फ्रीलांसिंग नवंबर एंड दिसंबर आर 2 months जहाँ पे काम बहुत कम होता है, क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने छुट्टियों पे जा रहे होते हैं, एंड दे डू नॉट वांट टू वर्क एट ऑल. सो आप उस दौरान प्रीवियस क्लाइंट्स को रीच आउट करके अपने नेक्स्ट ईयर की के लिए आप डील्स क्लोज कर सकते हैं. आई शेयर के हाउ आई क्लोज्ड वन in a minute. Okay, okay, the last thing आप कहेंगे कि अगर फ्रीलांसिंग इतनी अच्छी है तो मैंने जॉब क्यों स्टार्ट की. सो ऑनेस्ट आंसर इज के मैं बोर हो चुका था. all of my friends were busy in their lives. जिस टाइम वो फ्री होते थे, जो कि रात का टाइम है, उस टाइम मैं काम कर रहा होता था. जिस टाइम मैं फ्री होता था दिन के टाइम पे, उस टाइम वो या तो यूनिवर्सिटीज में होते थे या फिर काम कर रहे होते थे. तो आई गॉट बोर्ड
मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं रह गई थी। तो आई स्टार्टेड कि मैं एक कंपनी में ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ पे सोशल लाइफ होगी, एंड देन ऑन द साइड मैं फ्रीलांसिंग भी कंटिन्यू करता रहूँगा, ताकि मैंने जो 3-4 साल लगा कर अपना एक बिजनेस, अपनी प्रोफाइल बिल्ड की है, वो मैं गवा ना दूँ। सो these are some पॉइंट्स के मैं कंपनी और फ्रीलांसिंग के अंदर क्या फर्क है। एज यू कैन नो के फ्रीलांसिंग आपको टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जो कि कंपनी में काम करते हुए आपको नहीं मिल सकता। आप आपको हर रोज सुबह 9 बजे उठ के कंपनी में पहुंचना है, 5 बजे या 6 बजे वापस आना है, एक स्पेसिफिक जगह पर आपको कम्यूट करना है, देन ऑल दैट। बट फ्रीलांसिंग के अंदर एक चीज जो कि मैंने देखी है कि एक स्टेबल इनकम नहीं है। अगर आप स्टेबल इनकम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके हर टाइम हेडिक ना हो सर में कि यार नया प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा, मुझे क्लाइंट क्लोज करना है, तो देन वर्किंग इन अ कंपनी इज बेटर। बट इफ यू थिंक के you what you prefer more is time freedom and location flexibility, then freelancing is a better place to go. So that is why I started working in a company, and at the moment I am working in a company as well in Islamabad. Uh, Key takeaways of this presentation, जो कि मैं कहूँगा कि and थ्रू आउट प्रेजेंटेशन आप ये चीज देख रहे होंगे कि मैं ये कह रहा था कि गेट स्टार्टेड। if you guys do not get started, you will not get succeeded. आप अभी अभी स्टार्ट करें, रिसर्च करें, एंड देन यू गाइस विल लर्न डाउन द पाथ। और फेल होने से नहीं घबराएं, क्योंकि इट इज like a step of in the process. Okay. देन एक चीज जो कि मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, एंड आई एम नॉट लाइक अ मौलाना टाइप, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा इस्लामी हूँ, बट आई हैव सीन कि अगर आप अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, आप अपनी मेहनत कंप्लीटली ऐड करते हैं, यू गाइस विल सी के अल्लाह ताला फ्रॉम नोवेयर गाइड यू, यू नो, आप एक देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह से आपको वो रिज़्क अदा करता है कि आपको आइडिया तक नहीं होता। एंड दिस इज आई हैव सीन इन माय जर्नी। जब भी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात होती थी, हम आउट ऑफ नोवेयर मुझे कोई मैसेजेस आ जाते थे क्लाइंट्स के, पुराने क्लाइंट्स के, जिनको मैं भूल चुका होता था कि मैंने इनके साथ प्रोजेक्ट किया। तो अल्लाह ताला पर ईमान रखें, और अपना कंप्लीट दें, एंड यू गाइस विल see के you will start getting projects, and that is how I got my first project as well. मैं like 3-4 महीने हो गए थे, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, बट I was consistent, and I then eventually I got my first project, and then मूविंग फॉरवर्ड के वो आहिस्ता आहिस्ता आगे से चलता रहा। सो this was my presentation. If you guys have any questions, please let me know, and we can go through the session. सर आपने कम्प्लीटली चीज़ों को डिफाइन किया, पूरी एक बात को डिफाइन किया, लेकिन आपने स्टैक्स को डिफाइन नहीं किया कि कौन सा, लेट्स से फाइवर है या अपवर्क है। मैं फाइवर पे तकरीबन काफ़ी देर लगाई, लेकिन तब तो बाय रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन था, लेकिन जो ऑर्डर्स हैं उनको ग्रैब करना आपने नहीं बताया कि हमें कौन से टूल पे काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, या क्या स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए कि हम क्लाइंट को ग्रैब कर सकें। Okay. That is a very good question, Hassan. Yes, Hassan. Okay, Hassan. The first thing in Fiverr is your
प्रोफाइल एंड योर गिग्स। आप जब अपनी प्रोफाइल बनाएं, मेक श्योर आप 7 गिग्स की ऑप्शन होती है, मेक श्योर के 7 की 7 गिग्स बनाएं, एंड देन स्टे ऑनलाइन। और रात को ज्यादातर ऑनलाइन है, क्योंकि देखें, फाइवर इज अ मार्केट प्लेस एंड योर प्रोफाइल इज अ शॉप इन दैट मार्केट प्लेस। अगर आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे, दैट मीन्स कि वो प्रोफाइल आपकी या वो शॉप आपकी वो बंद है। तो जो भी कस्टमर आएगा वो बंद शॉप देखेगा, तो वो आगे मूव कर जाएगा। तो स्टे ऑनलाइन मोस्टली ड्यूरिंग नाइट्स, क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स हम जिनको टारगेट कर रहे हैं दे आर यूएस बेस्ड। और स्टे ऑनलाइन एंड इवेंचुअली अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा जल्दी आपको ऑर्डर्स मिल जाए, वन थिंग जो कि मैंने की भी थी was to get orders from my friends। एक दो आप रिव्यूज लें, ओके, एंड देन move forward with that। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हसन, हमने इस तरह से जब कलीम से मेरी बात हो रही थी ना, तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम क्या यूनिक सेमिनार के अंदर ऑफर करें जो कि मतलब यूट्यूब वगैरह पे मिलता नहीं है। मतलब अब हमने बहुत सारी चीज़ें आपने नोटिस किया होगा हमने स्किप की हैं। मिसाल के तौर पर फाइवर के बारे में कोई डिटेल्स नहीं बताई कि जी उस पर प्रोफाइल कैसे बनाएं, जी आपने कि क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो सी हैं जो इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल है, और उस पर जो से हमारे पास दर्जनों वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं ना, उनको हमने इंटेंशनली सेमिनार में से जो सा निकाला था, क्योंकि वी हैड लिमिटेड टाइम, वी वांटेड कि हम जो सा कलीम का जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना प्रोफेशनली काम करते हुए, हम मैक्सिमम वो शेयर करें जो कि यूजुअली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता। यूट्यूब पे हर जगह पे आपको ये वीडियो मिल जाती है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने जो सा है गिग कैसे बनानी है, उसका जो सा टाइटल क्या होना चाहिए, इस तरह की तमाम चीज़ें हमने इंटेंशनली स्किप की हुई है। लेकिन हाउएवर अभी जो सा मजीद के क्वेश्चन उसमें से आते हैं तो हम जो सा ब्रीफली उनको भी साथ आंसर करते जाएंगे। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अरकम का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मोहम्मद अहमद का क्वेश्चन आया है कि आप क्लाइंट से फॉलो अप कैसे लेते थे आफ्टर यू हैव शेयर्ड अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ योर सर्विसेज विद देम। ओके, the thing that I used to do was के मैं उनसे ऐसे ऐसा फॉलो अप नहीं लेता था। मैं उनको कहता था कि लेट्स हैव अ कॉल, क्योंकि आप उनको जब मैसेजेस करते जाएंगे दे विल फील के you are just trying to sell them on your services। just try to get them on call, and there is a very इजी वे टू गेट देम ऑन कॉल। जब वो आपसे रीच आउट करें, यू जस्ट मेंशन देम के और मोस्टली फाइवर पे या अपवर्क पे ऐसे ही होता है कि वो आपसे प्रोजेक्ट डिटेल्स आप रिक्वायर करते हैं, आप उनसे मेंशन करेंगे वी कैन हैव अ क्विक कॉल वेयर आई कैन लर्न mostly about your project, and then I can provide you details more about the you know price and the time frame and all that, okay? This way it is more likely to close a client deal than to follow up with on them on messages, क्योंकि वीडियो कॉल पे दोनों आमने सामने होते हैं। वैसे तो रेकमेंडेड है कि हम इन पर्सन मिलें, बट मोस्टली चूंकि हम यूएस क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम आमने सामने नहीं मिल सकते। सो आप वीडियो कॉल पर आए, उनसे डिटेल्स लें और देन क्लोज देम राइट अवे इन इन दैट कॉल, या अपनी जो प्राइस है इन दैट कॉल बताएं, क्योंकि जब आप अपनी उनको प्राइस बताएंगे आप उनके एक्सप्रेशंस देख सकते हैं कॉल में कि क्या वो बंदा इस प्राइस से खुश है, नहीं खुश, कि वो कह रहा है कि हाँ वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट। बट इन मैसेजेस इट इज नॉट पॉसिबल। आप मैसेज करते हैं एंड मोस्टली you get ghosted, and that is fine as well। If after a couple of tries you get ghosted, that's fine। Move forward with your another client, okay? uh Arqam, अस्सलाम वालेकुम। welcome, Salam।
सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली दो हैं। एक तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक था कि सर प्लेटफॉर्म हमें कौन सा स्टार्टअप एज अ स्टार्टअप पर्सन हमने प्लेटफॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना है। सेकेंडली ये कि एक स्टार्टअप जब हम कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता मार्केट प्राइस क्या है उस काम की। हमारे लिए एक प्रोजेक्ट आता है, हमें लगता है कि अच्छा भाई थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है या छोटा प्रोजेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है हम बिगनर्स हैं, हमें आइडिया नहीं होता। और हम खुद से ही एक जनरेट करके प्राइस बता रहे होते हैं जिसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। हो सकता है वो हम काफी ज्यादा बता रहे हो सकता है वो काफी कम बता रहे हो। तो एक तो वो उसका आइडिया किस तरह लेना है। दूसरा प्लेटफॉर्म का ये था कि सर जैसे आपने फाइवर को प्रमोट किया थोड़ा सा कि हम फाइवर पे जाएं। अपवर्क का जरा कर्व जो है प्रोफाइल अप्रूवल का वो जरा मुश्किल है। फाइवर पे भी होता है कि आपको गिग्स अप्रूव करवाते हुए काफी टाइम लग जाता है। कभी कभार अप्रूव जल्दी हो जाती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं हमें उसका आइडिया नहीं होता। और हम लोग अक्सर बनाते हैं तो फाइवर हमारी आईडीज को ब्लॉक कर देता है। अक्सर यही होता है कि छोटी छोटी बातों पे वो ब्लॉक कर रहा है कि जी आपने मल्टीपल डिफरेंट स्टैक्स के ऑर्डर लगवा लिए आपने, और इस टाइप के वो काफी बहाने बन रहे होते हैं उनके, और अक्सर लेम भी होते हैं। मैं तो यही कहूंगा क्योंकि एक आधा हुआ भी, एक फ्रेंड की आईडी ब्लॉक हुई थी इसी बात पे कि क्लाइंट से उसने बात कर रहा था और वो उसने असाइनमेंट की बात की, वो ऑर्डर अप्रूव भी नहीं हुआ और स्टिल उसने आईडी बंद कर दी। फाइबर वाले ने आईडी बंद कर दी। तो उन चीजों को किस तरह हैंडल करना अ, सलीम आप म्यूट है मेरे I'm ख्याल sorry. Yeah, I'm sorry. So the first part of your question was कि हमें prices का idea नहीं होता starting पर, and that is true कि जब आप start करते हो आपको idea नहीं होता कि यार मैं कितना charge करूँ, is it fine कि मैं ये इतना charge कर रहा हूँ कि market में ऐसा है भी या नहीं। So एक चीज आप जो करें, और मैं मोस्टली रेकमेंडेड है कि ओपन जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, फाइवर है या अपवर्क है या जो भी प्लेटफॉर्म है, एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करें। ओके, उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं, फाइवर पे या अपवर्क पे। ओके, fiverr.com पे जाएं, अपनी सर्विसेज को जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विसेज के तो सर्च करें, और जो टॉप रेटेड सेलर्स है ना, या जो गिग्स मोस्टली सेल हो रही हैं, उनको डिफरेंट टैब्स के अंदर ओपन कर लें एंड सी के जो मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस जो रेंज है वो कितनी है। लाइक फॉर अ थ्री पेज वेबसाइट कितनी जा रही है, फॉर अ 5 पेज एंड फॉर अ 10 पेज, लाइक एंड after going through 5 to 10 profiles या 5 to 10 gigs, uh, अपनी एक शीट बनाएं और उस रेंज के अंदर अपनी प्राइसेस रखें। स्टार्टिंग पर उस रेंज से थोड़ी कम रखें, क्योंकि स्टार्टिंग पे व्हाट इज योर गोल इज कि आपने अपना ऑर्डर्स लेके आने हैं, रिव्यूज लेके आने हैं। रिव्यूज लाने के बाद देन यू कैन चेंज योर प्राइसेस। ओके, एंड गो इनटू दैट रेंज जो कि मार्केट चार्ज कर रही है। तो दिस इज हाउ you can get an idea के इसका मार्केट रेट या मार्केट प्राइस क्या चल रही है, and then you can charge them accordingly. The second part was कि फाइवर और अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूवल सिस्टम। हाँ, फाइवर मैंने जहाँ तक देखा है फाइवर इस चीज़ के अंदर थोड़ा लैक करता है कि दे डोंट हेयर योर साइड ऑफ द स्टोरी। वो फाइबर इज मोर inclined towards द बायर। ओके, वो सेलर की बात नहीं सुनता। आई हैड एन एक्सपीरियंस इन 2021 जहाँ पे मैंने एक सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिया था, एंड आई हैड डिलीवर्ड देम द वेबसाइट एज वेल, एंड बिफोर द डिलीवरी माय क्लाइंट आस्क्ड, और फाइवर पे वो एक होता है कि कैंसिल प्रोजेक्ट का ना ऑप्शन होता है, वो उसने वो किया, एंड फाइवर विदाउट आस्किंग मी went ahead and canceled the project. Or I tried to reach out to their customer support, but they didn't listen. So Fiverr is a little bit more buyer centric, but Upwork जो है वो I have seen के वो आपकी स्टोरी सुनता है, एंड देन
इफ अगर आपकी स्टोरी सही है, आपका पॉइंट सही है, दे प्रोवाइड यू द सपोर्ट, एंड अगर आपके पैसे बनते हैं तो आपको रिटर्न भी कर देते हैं। तो अगर आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग पे, इस चीज को मद्देनजर रखें कि स्टार्ट पे फाइवर पे प्रोजेक्ट लेना आसान है, अपवर्क पे स्टार्ट पे प्रोजेक्ट लेना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि अपवर्क इज लाइक, अपवर्क पे जो क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़े हायर लेवल के प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर रहे होते हैं। तो हायर लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए वो देख रहे होते हैं कि वो वाला बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि फाइवर से आप एक्सपीरियंस लें, प्रोजेक्ट्स लें थोड़े से, एंड देन मूव टुवर्ड्स अपवर्क, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ज्यादा होते हैं। फाइवर पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि एक एक ऑर्डर आएगा, आप आर्ली काम ही नहीं कर सकते फाइवर पे। तो अपवर्क पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ज्यादा होते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम फाइवर एंड देन मूव टुवर्ड्स अप। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, आतिफ। सर सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम किसी क्लाइंट से डील करते हैं या कोई बात होती है, सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं या एक्सपीरियंस। अगर हमने कोई ऐसा फ्रीलांसिंग पहले किया ही ना हो तो फिर उस सूरत में हम क्या उन्हें जवाब दे सकते हैं। और दूसरा ये कि जिस तरह आपने बोला था कि एप्पल वाली की एग्जांपल कंपनी की दी थी कि उनकी वेबसाइट्स को उन्होंने रीडिज़ाइन किया था स्क्रैच से, आप लोग भी इस तरह वेबसाइट्स को खुद से रीडिज़ाइन करें जो पहले से बनी हुई है। तो जब हम करने देखते हैं सारा कुछ तो उस वक्त ऐसा फील होता है कि उसने तो सब बेहतर ही किया हुआ है, इससे बेहतर इसमें कोई चीज़ नहीं आ सकती, या ऐसे फील उसके रिलेटेड क्या किया जाए हमें। ओके, so the first part was I'm sorry, फर्स्ट पार्ट वाज के आप जब आपके पास क्लाइंट आता है स्टार्ट पे, वो आपसे कहता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, और मोस्टली आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया कि आप एक अपना सैंपल प्रोजेक्ट्स करें, ठीक है, और वही सैंपल प्रोजेक्ट्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करें, एंड मेंशन देम कि ये सैंपल प्रोजेक्ट्स हैं। डू नॉट मेंशन कि ये क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जब आप ये मेंशन करेंगे यू आर बीइंग ऑनेस्ट, और क्लाइंट्स लाइक समवन हु इज बीइंग ऑनेस्ट, और वो ट्रस्ट करते हैं, आपका एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात ये कि हम देखते हैं कि अ, हम जब बिगनर लेवल होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें प्रोजेक्ट कोई भी नहीं देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप बिगिनर लेवल पे होते हो, यू आर विलिंग टू लर्न, यू आर विलिंग टू पुट मोर एफर्ट इनटू दैट प्रोजेक्ट, और ये चीज जब आप अपने क्लाइंट्स को शो करवाते हो, दे इवेंचुअली ट्रस्ट यू एंड मूव फॉरवर्ड विद यू। और अगर आप उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा काम करके देते हो, देन they will also refer you as well, and they will always be returning as well. So this is the first part of your question. So the second part is के जैसे वेबसाइट्स हैं एप्पल, या obviously they have invested um, hundreds and thousands of dollars into that design, और आप just a person कैसे उसको एक बेहतर कर सकते हो। So the goal is not present a better design. The goal is कि आपने अपना इनिशिएटिव लेके एक चीज अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करनी है। बेहतर देखें, एप्पल से बेहतर कंपनी या एप्पल से बेहतर डिजाइन कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, गिवन कि उसके पास एक सेट अमाउंट ऑफ बजट हो, बट यू डू नॉट हैव दैट। तो इट इज नॉट कि आपने उससे बेहतर करना है। द गोल इज कि आपने एक इनिशिएटिव लेना है, एंड और जैसे मैंने बताया था कि वो इट वाज नॉट कि एप्पल से बेहतर था, इट वाज कि वो एक हिट चीज चल रही थी, और उसने भी उसके बारे में डिजाइन किया या उसके बारे में बात की, एंड ही गॉट हिट एज वेल। ओके, सो दैट इज द गोल, के आपने
एक इनिशिएटिव लेकर अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक चीज ऐड करनी है जो कि लेटर डाउन द रोड आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि आपके पास एट द मोमेंट कोई पोर्टफोलियो सैंपल नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू। जैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ना पहले तो सबसे पहले ये था कि आपके कम से कम पोर्टफोलियो में कितने प्रोजेक्ट्स लाजमी होने चाहिए हम्म, एट स्टार्ट, कि जिसके बाद आप कहें कि अब मैं शुरू कर सकता हूँ। सबसे पहला ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि फाइवर आप कह तो रहे हैं आसान है, लेकिन हम में से बड़े लड़के हैं जो कि फाइवर से शुरू करके फाइवर नई प्रोजेक्ट मिले मेहनत करके वहाँ पे, तो मेहनत चलें कह लें कि हमने कम की होगी लेकिन की है, लेकिन हम्म। वहां से दिल हार के हम लोगों ने फ्रीलांसिंग छोड़ी है। फाइवर को ऐसा प्लेटफॉर्म भी आप कह सकते हैं। ओके, सो मिनिमम कितने प्रोजेक्ट्स हों? आई वुड से 3। आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, you are good to go to the market. Doesn't matter कि वो रियल क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैं या वो सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं, एज लॉन्ग एज दे आर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट बना ली किसी रेंटल कार बिजनेस की, दूसरी बना ली किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी की, तीसरी किसी और इंडस्ट्री की। सो अगर आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, यू आर गुड टू गो टू द मार्केट एंड यू कैन प्रोवाइड देम दोज लिंक्स। ओके, सेकंड पार्ट होता है ऐसे फाइवर। मैं नहीं कहता कि बहुत आसान है, मैं ये कहता हूँ कि फाइवर एज कंपेरेटिव टू अपवर्क आसान है, क्योंकि अपवर्क पे अम, जो क्लाइंट्स होते हैं वो मैंने जैसे मेंशन किया, दे आर लाइक अपर, और वो उनके पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपर लेवल की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, और दे डू नॉट वांट टू रिस्क दैट इन्वेस्टमेंट टू समवन हु डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस। ओके, बट ऑन फाइवर मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो एज ए स्मॉल बिजनेस, 1 पर्सन बिजनेस होते हैं, एंड दे कैन लाइक $200-300 दे कैन रिस्क इट। ओके, बट ऑन अपवर्क इट इज कि आप वहां पर $5,000-10,000 का प्रोजेक्ट है, वो रिस्क नहीं करना चाहते। हाँ, अब बात आती है कि फाइबर से भी दिल हार जाते हैं, और होता है। मैंने जैसे सबसे पहले बताया था कि मैं फोटो एडिटर था। मैंने 2020 में मार्च में स्टार्ट किया था। बहुत कोशिश की, फाइवर पे 3-4 महीने लगाए, नहीं कोई भी प्रोजेक्ट आया। इवेंचुअली आई लॉस्ट माय फेथ के यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता ना, ठीक है। बट देन मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था आई साइड के, ठीक है। कोशिश करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे मुकेश भाई ने बताया, अभी वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में इसीलिए नहीं रखी क्योंकि वो सारी चीजें जो है वो आपको यूट्यूब से मिल जाती हैं। आप उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि आप प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, आप वो करें। और मेरी लास्ट स्लाइड थी कि आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें और कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। जब आप यकीन रखकर मेहनत करते रहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, हर रोज अपने आप को कोई चीज सीखते हैं, इवेंचुअली अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड देता है उसका। मेरे साथ हुआ है। मुझे ऐसे ही प्रोजेक्ट मिला था, मैं मतलब कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, और मैं एक लाइक ऐसे सिचुएशन में था कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और मुझे पैसे चाहिए थे। तो मैंने कहा कि बस ऑप्शन ही ये है, लगे रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या था, आपका टाइम ही था ना, तो आप वैसे भी तो टाइम हम बैठे जाया कर ही लेते हैं ना, इंस्टाग्राम या फेसबुक या टिकटॉक चलाकर। आप वही टाइम अपनी प्रोफाइल को दें, ऑनलाइन रहें ज्यादा, और कोशिश करें कि कंसिस्टेंटली ऑनलाइन रहें ना, तो ताकि इवेंचुअली आपकी गिग या आपके प्रोजेक्ट्स रैंक हो, और देन इवेंचुअली यू विल गेट द प्रोजेक्ट। चले, आपने ना 3 प्रोजेक्ट्स की बात की, उसमें ना एक छोटा सा चीज़ ये है कि 3 प्रोजेक्ट्स हम लोग किस किस्म के लें।
कि मतलब एक जी हम लोग ले लें उसका फूड से रिलेटेड, फूड की कोई जी वेबसाइट, एक ई कॉमर्स, इस तरह के बता दें कि तीन आप लोग हमारे किस किस्म के होने चाहिए प्रोजेक्ट्स, किस किस कैटेगरी के, किस किस नीश के। ठीक है, तो डजेंट चलिए मैटर। हम इसको ना क्विकली आंसर करके फिर आगे चलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन। जी doesn't matter. You can select any industry as long as they are different. uh, it doesn't matter कि आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कि जिंदगी में ढीठ बन जाओ, उसका बड़ा स्कोप है। तो वो परसेवेरेंस है कि ढीठ बन जाना है। भाई जो भी आपने गोल रखा है उसमें मुश्किलात तो आएंगी, और जहाँ पे आपको अल्टीमेट कोई आपकी जो मंजिल है ना, वो अच्छी खूबसूरत मंजिल है, आपने से कुछ सक्सेस पाना है, फ्रीलांस में हो, जॉब में हो, कहीं भी हो, तो वो ये चीज़ है कि जो उनसे मुश्किलात हमेशा आनी है। ये जिंदगी में, इस दुनिया में मुश्किलात अगर ना होती, हमें ना आती, तो ये तो दुनिया ना होती ना, तो फिर जन्नत होती। तो अल्लाह ताला ने बनाई तो ये दुनिया जो से आजमाइश के तौर पर है। तो वो कभी आपको किसी डिफरेंट जिंदगी के मोड़ पे आपको मुश्किल आएगी, कभी पर्सनल लाइफ में, कभी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन मुश्किलात तो आनी है। तो उसके अंदर बस कोशिश ये करनी है कि जिस टाइम पे यू आर अबाउट टू लूज फेथ, उस टाइम पे तुम मोटिवेट योरसेल्फ, टॉक टू समवन जो कि देन मोटिवेट टू टॉक टू समवन जो कि हु इज डूइंग वेल उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, दे कैन हेल्प यू आउट उस चीज के अंदर। अक्सर। अक्सर नहीं है तो रेयान। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन था कि बेसिकली होता ही है कि आपने सारी बात कर ली ना कि प्रोजेक्ट्स हम अपने मेंटेन कर लें, अपनी स्किल सेट मेंटेन कर लें, उसको अपलोड कर दें, सारा कुछ एक अच्छी अपनी पोर्टफोलियो बना लें। लेकिन अब जो ठीक है, आपने का एक्सपीरियंस जो है वो इतना मैटर नहीं करता। आप इनिशियल प्रोजेक्ट्स अपने ऊपर लगाएं, उस पर फिर आपके जो है ना वो क्लाइंटेल आप ले सकते हैं। लेकिन अब ये फॉर एग्जांपल आपने शुरू में बात की थी कि आपने अपने आप को अंडर सेल नहीं करना कि कम पैसे, तो वो क्या क्राइटेरिया होगा कि हम जो एक 10 साल का एक्सपीरियंस वाला यूआई डिजाइनर बैठा हुआ है और हम फ्रेशर बैठे हुए हैं, तो वो क्या की पॉइंट होगा जिसपे वो हमें ऑर्डर दे देगा और उसको छोड़ देगा? तो ये ओके। मैंने एक एक क्वेश्चन पहले था तो मैंने मेंशन किया था कि जब आप स्टार्टिंग पे हो तो एक जो रेंज है ना जिसपे हाई टॉप रेटेड सेलर्स काम कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा कम रख लें। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम रख लें। और दूसरा क्वेश्चन के एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को काम कौन क्यों नहीं देगा, आप फ्रेशर को काम क्यों देगा? अ, मैं भी यही सोचता था। लेकिन जो 10 साल वाला बंदा है ना, उसके पास इतना काम है या इतना एक्सपीरियंस है कि वो एक जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसको उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। वो उस प्रोजेक्ट को इतना वो नहीं दे इम्पोर्टेंस नहीं देगा जितनी आप दोगे, क्योंकि आपके पास आपको उस प्रोजेक्ट की जरूरत है। और अगर उस प्रोजेक्ट के दौरान कोई चीज आपको सीखनी पड़ती है, यू आर विलिंग टू लर्न दैट थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट एज वेल, राइट? आप उस चीज को सीखने को सीखोगे, आप अपनी लाइक 100% प्रोवाइड करोगे कि आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहे। लेकिन एक 10 साल का बंदा, एक्सपीरियंस वाला बंदा आपसे वो अपने उस क्लाइंट को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा या उतना 100% लाइक या आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है। ये एक चीज जो कि मैंने देखी थी। दूसरी चीज ये कि आप जब स्टार्टिंग पे होते हो, आपको लग रहा होता है कि हर कोई एक लाइक उसके पास ही जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो न्यू बंदों के पास जाएं ताकि उनसे उनको देन ट्रेन करके, ठीक है, फिर बाद में उनके साथ वो काम करें। क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो एक न्यू क्लाइंट के लिए अपने पिछले क्लाइंट्स को नहीं छोड़ता, लेकिन जो स्टार्टिंग में होता है वो उस क्लाइंट के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ठीक है। तो दैट इज हाउ आई थिंक कि आपको ये बिगिनर वाला माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को मिलेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं क्योंकि इट इज
the market is big enough to get your chunk. Okay, so just take your chunk and be happy. अच्छा, एक थैंक यू। क्वेश्चन मेरा भी है कलीम इसमें कि आप फ्रीलांसिंग करते हुए रात को ऑनलाइन रहना पड़ता है, आपको लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, बिड्स डालनी पड़ती हैं, और सारा नेगोशिएशन करने के बाद जाके आपको प्रोजेक्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ या कोई और है, वो अपनी जॉब करता है डे टाइम के अंदर, मेरे पास वीकेंड्स पे टाइम होता है, मेरे पास शाम को टाइम होता है कि मैं रोज के 2-3 घंटे 4 घंटे स्पेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है कि मैं पूरी रात लगाकर दूसरे टाइम जोन के साथ सिंक करके उनसे सारी बिडिंग करूँ और अपनी प्रोफाइल मेंटेन करूँ। तो स्किल है मेरे पास, कुछ हद तक पोर्टफोलियो भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास इस चीज़ का टाइम नहीं है कि मैं खुद अपनी प्रोफाइल चलाऊँ। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या कोई ऐसा का मामला भी होता है कि उनसे कोई, मतलब कोई एक बंदा जो उनसे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अगर हम ले लें तो हम बोलें कि एक बंदा जो उनसे बिडिंग कर ले सारी, वो सारा क्लाइंट मैनेजमेंट करे, बाकी 2-3 बच्चे साथ हों, वो उस टीम के साथ उसको मैनेज करे कि वो उनको सारी रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड कर दे। या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं पाकिस्तान के अंदर, या कोई ऐसे कनेक्शन भी हैं, या आपके सर्कल में शायद कोई ऐसे लोग हों जिनके पास प्रोजेक्ट्स हों, टाइम ना हो प्रोजेक्ट करने का, और वो रिसोर्सेज चाह रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनसे जब कोई किसी ने अपनी प्रोफाइल से कुछ लेना है तो एक सेट परसेंटेज कट रखा जाता है और फिर प्रोजेक्ट फिर आगे दिया जाता है। तो जो इस तरह के जो बच्चे हैं जो कि एज अ साइड हसल कहते हैं कि यूएक्स भी अच्छा आता है, दिन टाइम में प्रोग्रामिंग करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा, शाम टाइम में उनसे 2-3 घंटे लगा के या वीकेंड पे पूरे 2 दिन लगा के मुझे कोई खर्चा निकला है महीने का, मैंने कोई टूर मारने जाना है, मुझे 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख चाहिए, मैंने कोई चीज़ छोटी खरीदनी है, तो वो एक्स्ट्रा कभी कभार होता है, बंदा कहता है कि मैंने यहाँ पैसे निकाल लें, उस केस के अंदर फिर हम क्या करें? Okay. वेरी गुड क्वेश्चन भाई। तो जैसे आपने मेंशन किया कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हाँ, मोस्टली जो अब एजेंसी लेवल के अंदर लोग चले गए हुए हैं, उन्होंने किया ही ऐसे हुआ है, उन्होंने एक टेम्पलेट अपना जैसे बिड का बना लिया हुआ है, एंड दे हैव हायर्ड पर्सन जो जो कि स्पेसिफिकली यही काम करता है, वो सिर्फ बिड करता है, आगे प्रोजेक्ट करना, अ, उसको शेयर लाइक क्लाइंट को प्रोवाइड करना, देन यू नो द रियल वर्क इज बीइंग डन बाय समवन एल्स, और जो बिडिंग कर रहा है वो कोई और है। तो अगर किसी के पास ऐसा है कि एक बंदा रात को बिडिंग कर सकता है या ऑनलाइन रह सकता है, तो और दूसरा बंदा दिन में या जिस भी टाइम उसके पास काम टाइम हो, उस टाइम वो काम कर सकता है। आई थिंक दैट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि हाँ, ऐसा होता है कि आपके पास आप दिन में जॉब कर रहे होते हो या दिन में यूनिवर्सिटी जा रहे होते हो, तो रात आप सारी ऑनलाइन नहीं रह सकते, तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात जो कि भाई ने की कि आ, अब मुझे जहां तक लगता है कि आप को अगर स्टार्टिंग में बिल्कुल कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो आप उन बंदों के साथ मिल जाओ जिनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलरेडी हैं, लाइक एजेंसीज। लिंक्डइन के ऊपर एजेंसीज बैठी हैं जो कि मोस्टली मोस्टली हायर कर रही होती हैं। देर इज there is a website, I think so, I'll share the link with you भाई। फ्लो रिमोट आई थिंक सो नाम है, वो एक वो स्पेसिफिकली एजेंसीज के लिए वेबसाइट है कि एजेंसीज अपने आके वहां पर जो उन्होंने हायरिंग करनी है या जो उन्होंने प्रोजेक्ट पोस्ट करने हैं वो पोस्ट करें, और जो बंदे जिनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है वो जाके उसके ऊपर उनके साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। और ये मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट भी बनाया हुआ लिंक्डइन के लिए, लिंक्डइन आउटरीच के लिए। मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें। और मैं भी यही करता होता हूँ कि जब मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं होते तो मैं एजेंसीज के साथ के से प्रोजेक्ट ले लेता होता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली दे डू हैव द प्रोजेक्ट्स, एंड दे डू नीड पीपल जो कि उनको प्रोजेक्ट्स करके दे सकें। ऑलराइट, थैंक यू। अफान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच भाई फॉर योर टाइम। अच्छा, आपने अभी पहले एग्जाम में के क्वेश्चन को आंसर किया था कि हम डिफरेंट फील्ड्स के इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स बना लें। तो अगर हम ये देखा जाए कि कोई बिजनेस ओनर है तो वो अपने कंपटीटर से एक बेहतर वेबसाइट बनाना चाह रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक रियल स्टेट का बिजनेस ओनर है, वो चाहता है कि जितने भी रियल स्टेट के लोग हैं मेरी उनसे टॉप पे कह लो कि मेरी वेबसाइट बने। तो हम क्यों ना एक पहले नीश डाउन कर लें कि हमने इन लोगों के
टारगेट करना है बिजनेस ओनर्स को, तो हम उन्हीं की ही 3 to 5 वेबसाइट्स बना लें ताकि हम उसको दिखा सकें कि ये आपके कंपटीटर्स इससे बेहतर एक अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो क्या ये एक अप्रोच बेहतर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे आप जब स्टार्ट कर रहे होते हो ना अफवान, और आपके पास होता ऐसे है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होते और आप देख रहे होते हो कि मुझे जल्द से जल्द कोई प्रोजेक्ट मिले, किसी भी इंडस्ट्री का मिला है, ठीक है, डजेंट मैटर। हाँ, अगर आपके पास, आप समझते हो कि आपके पास टाइम है, आप इतना बर्दाश्त कर सकते हो कि अगर आपको 1-2 महीने कोई प्रोजेक्ट ना भी मिले या 3 महीने कोई प्रोजेक्ट ना भी मिले, तो आपको कोई मसला नहीं है, तो आप नीच डाउन कर लो और सिर्फ उसी स्पेसिफिक नीच को टारगेट करो। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि चूंकि अब हम ट्राई कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट मिले, तो एक जनरल नीश के अंदर या ओवरऑल सब निशीज को टारगेट करना इज लाइक बेटर। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप समझते हो कि मैं बेयर कर जाऊंगा 2-4 महीने, तो देन आई थिंक निशिंग डाउन इज वेरी हेल्पफुल इन देयर। ऑलराइट, थैंक यू। और अशर। Hello, Assalamu alaikum. Am I audible? वेलकम सलाम जी। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन डू यू अपसेल योर सर्विसेज? बिकॉज आई बिलीव जो आपकी इनिशियल प्राइस होती है फाइवर पे, इट्स जस्ट अ हम्म, हुक टू लूर द क्लाइंट इनटू योर हम्म। इनबॉक्स। तो उसके बाद आप मतलब ट्राई करते हैं कि मैं कोई एड ऑन सर्विसेज उसको सेल करूं जो मेरे ऑर्डर की ओवरऑल प्राइस है वो इंक्रीज मतलब हो जाए। तो ओके, हाउ ऑफन डू यू? ओके, हाँ जी। सो मोस्टली जो प्राइसेस आपकी गिग पे शो हो रही होती हैं या प्रोफाइल पे शो हो रही होती हैं, दे आर लाइक जनरल प्राइसेस। आप हर प्रोजेक्ट डिफरेंट है और आप डाउन द लाइन सीखोगे कि हर प्रोजेक्ट को कैसे प्राइस करना है। द थिंग आई ट्राई टू डू इज कि मैं उस टाइम अपसेल करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है, उस टाइम मैं डील क्लोज करने की कोशिश करता हूँ उसके साथ, ठीक। After closing the deal and after presenting my best, अब चूंकि उसको पता चल चुका होता है कि मैंने काम बहुत अच्छा किया है, आई प्रोवाइडेड माई 100% टू दिस, देन मैं उसको आफ्टर प्रोजेक्ट मैं उसको अपसेल करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूँ, ठीक है, आफ्टर द प्रोजेक्ट मैं उसको ऑफर करता हूँ कि यार मैं आपकी वेबसाइट डेवलप भी करके दूंगा, फिर मैं उसकी एसईओ भी करूंगा। अब वेबसाइट मैं डेवलप कर लेता हूँ, लेकिन मुझे एसईओ नहीं आती, वो मैं किसी और से करवा लेता हूँ। तो ये मैं अपसेलिंग जो है वो आफ्टर प्रोजेक्ट करता हूँ, विद इन दैट प्रोजेक्ट नहीं करता, क्योंकि जब आप अपसेलिंग कर रहे होते हो राइट अवे, उसको ये लगता है कि यार ही इज जस्ट ट्राइंग टू गेट मोर मनी आउट ऑफ माई पॉकेट। बट आप जब उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर देते हो, उनको आपकी सर्विस का और आपकी वर्क क्वालिटी का पता चल जाता है, उस टाइम क्लोज करना ज्यादा आसान होता है या अपसेल करना ज्यादा आसान होता सर। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, अटेंडेंस होगी? हाँ जी, अटेंडेंस मैं ले रहा हूँ, मैं स्क्रीन शॉट्स ले रहा हूँ जी अक्सर। सर अस्सलाम जिनका कोई वालेकुम। क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकते हैं या रहें? तो बैठे हैं, क्वेश्चन सुने हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ना, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस पहले से नहीं है, हम्म। तो उसी को मैं एक्सटेंड करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट शुड आई कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट कि यार मेरा पहला पहला एक्सपीरियंस है, तो अगले अगले को भी द नेक्स्ट पर्सन नोज एज वेल कि आपका पहला पहला एक्सपीरियंस है, तो इस स्पेस पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या नहीं? ओके, कुछ थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक वेबसाइट है जो कि मार्केट के अंदर या वैसे यूजुअल उसका लाइक $300 $500 चार्ज हो रहा है, तो आप वो 50 या 60 डॉलर के अंदर कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप कुछ कीजिए। लेकिन एक चीज जो कि आप ट्राई कर सकते हैं उसका ट्रस्ट जीतने के लिए, वो आप कर सकते हैं कि उसको अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसका जो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसको ऑफर करेंगे, मैं ये फ्री में कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है, ताकि उसको भी हो कि यार ये बंदा मेरे साथ ऑनेस्ट है, एंड दे वांट टू
provide their 100% to my project, ताकि आप प्राइस के ऊपर इतना ज्यादा वो कंप्रोमाइज ना करें। आप एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइक 5 पेज की वेबसाइट है, तो आप उसको कहें कि मैं जो एक पेज है या एक पेज के कुछ सेक्शंस हैं वो आपको एज अ सैंपल स्टार्टिंग पे आपको मैं फ्री बना दूंगी, अगर आपको पसंद है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, तो प्राइस के ऊपर भी आपका कंप्रोमाइज नहीं होगा और आपको उसका जो ट्रस्ट जीतने में भी आसानी होगी। थैंक यू। Got it. Thank you so much. जी ईशा। मेरा क्वेश्चन था कि हाउ डू यू बेसिकली इंश्योर कि आपके जो डिजाइन डिसीजंस हैं वो दे आर बेस्ड ऑन द यूजर नीड्स और उनके बिहेवियर, और इस तरह के क्या मेथड्स हैं यूजर रिसर्च के जो आप एम्प्लॉय करते हो, तो हम उससे सीख सकें। Okay, so this will be more towards design based. Um, the first thing comes is के रिसर्च, आपकी रिसर्च कितनी ज़्यादा है उस प्रोजेक्ट के लिए या उस क्लाइंट ब्रीफ के लिए। तो आप पहले क्या करते हो कि आपको क्लाइंट ब्रीफ आता है, आप उससे पूछते हो कि आपकी जो कंपेटिटर्स हैं वो कौन है। देन आप उनसे पूछते हो कि आपको किस टाइप की या कुछ वेबसाइट्स जो कि आप पसंद करते हैं या रेफर करते हैं वो कौन सी वेबसाइट्स हैं। वो अगर आपको प्रोवाइड करते हैं गुड, नहीं तो आप ड्रिबल पे या दूसरे बिहेंस पे जाके उनके रिलेटेड वेबसाइट सर्च कर सकते हो। देन आफ्टर लाइक टेकिंग 4 to 5 वेबसाइट्स, एक फिग्मा फाइल बनाते हैं और देन आप उसके जो है वो रेलिवेंट डिजाइन्स, उस डिजाइन को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप उनके रेलिवेंट डिजाइन जो है वो या उनसे इंस्पायरेशन लेके डिजाइन जनरेट करते हो। द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने क्लाइंट से उनके जो वेबसाइट वो पसंद करते हैं वो आप ले लें, ताकि डाउन द प्रोसेस या डाउन द लाइन जो अगर आप उनको ये ना हो कि अगर आप पूरा वेबसाइट बना दें और बाद में वो कहें कि नहीं मैं तो ऐसी वेबसाइट चाहता था या फिर मुझे ये वाली फील चाहिए, मॉडर्न फील चाहिए या क्लासिक फील चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ के आप अपने डिजाइन जो है वो एक मेक श्योर कर सकते हो कि उसके पीछे क्लाइंट भी हैप्पी है और आपके डिजाइन डिसीजंस भी सही। चैट में 1-2 क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखते हैं। जी, हाउ डू वी रन अपसेल, ये हो गया। इशाद आपका भी क्वेश्चन है, स्केल आवर प्रोफाइल एज न्यू प्रोफाइल। सो शजीब, आपका क्वेश्चन है कि एज अ न्यू फ्रीलांसर आपने अपनी प्रोफाइल कैसे स्केल करनी है। अगर आप फाइवर या अपवर की बात करते हो, ऑल दे केयर अबाउट इज हाउ integrated are you within their platforms. फाइवर अपवर्क पे जब आप फाइवर पे प्रोफाइल बनाते हो तो आपके पास ऑप्शंस होती हैं 7 गिग्स बनाने की एज अ न्यू सेलर। आप मैं रेकमेंड करूंगा कि 7 की 7 बनाएं, ठीक है, ताकि फाइवर को पता हो कि ही हैज सम स्किल्स, ही हैज सम प्रोडक्ट्स। ओके, एंड देन फिर आप उन प्रोडक्ट्स को या उन गिग्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करना शुरू करें, लाइक फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर या लिंक्डइन पे, टू गेट योर टू गेट द आईज ऑफ पीपल ऑन योर गिग्स। ओके, अब जब बाहर से या दूसरे प्लेटफॉर्म से कोई फाइवर पे आके आपकी गिग देखेगा तो फाइवर इवेंचुअली आपकी गिग को पहले दूसरे तीसरे पेज पे रैंक करेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग ट्रैफिक ऑन देयर वेबसाइट। This is how you can get your gigs ranked और then फिर closing और selling का process start होता है। अच्छा, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। Mateen, how should we maintain our portfolio? Maintain what kind of projects? Mateen, as long as you have different industries के projects, it doesn't matter कि आप
किस टाइप के प्रोजेक्ट ऐड करते हो। आप ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम। आप लाइक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, दैट इज फाइन। बट स्टार्टिंग पे कोशिश करें कि 2-3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो ताकि आप शो कर सको कि मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है। ठीक है मोहित भाई, आई थिंक सो हाँ दैट्स जी, इट। सारे क्वेश्चंस बाकी हो गए। आतिफ, आपका दोबारा कोई क्वेश्चन है? जी हाँ, आई थिंक सो कंफर्मेशन जी हो सर, मेरा गई। जी क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। जी सर, सबसे पहले हमारी बात हुई थी कि पोर्टफोलियो बनाना, तो मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। पोर्टफोलियो बनाने का बेसिक मतलब भी किस चीज़ पे पोर्टफोलियो बनाना? आपने अपनी एक वेबसाइट बना के अपने बारे में डिटेल्स होस्ट करनी है, या मींस क्या इससे मुराद है मतलब पोर्टफोलियो से? तो आपका क्वेश्चन नहीं मेरे ख्याल से ये है कि एक तो जी जिस टाइम पे आपका पहले कोई काम नहीं आपने किया हुआ, आपने वैसे पोर्टफोलियो बनाना है, तो एक तो मेरे ख्याल बिहान्स पे आप बना सकते हैं, उधर आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो, जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो फिर जो से आपके पास सपोर्टर्स हैं तो वो आपने पोर्टफोलियो के हिसाब से करने हैं। और मैं एक चीज़ साथ ऐड कर दूंगा, क्या क्लाइंट का किया हुआ काम जो आपने किसी से पैसे लेकर फाइवर पे किसी और जगह पे दिया है, तो वो उसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये किस चीज़ पे करना होता है मतलब जब आप हमारा प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस भी हो जाता प्लेटफॉर्म है तो ये? पूछ रहे हैं। जी, प्लेटफॉर्म पूछ रहा हूँ। अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट स्टार्ट। ठीक है, मैंने अपनी जो पर्सनल वेबसाइट बनाई थी वो 1.5-2 साल बाद जाके बनाई थी। जब मुझे लगा था कि यार अब चलो एक लाइक उसके लिए ही सही। आप स्टार्टिंग पे बिहांस यूज कर सकते हो, बिहांस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। देन आप यूज कर सकते हो ड्रिबल। ड्रिबल एक डिजाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स शेयर कर सकते हो। ठीक है और मोस्टली ये 2 प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। यू कैन यूज लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर आप शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट शेयर करो लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे। फेसबुक आई थिंक सो इज नॉट एनी मोर रेलिवेंट, या हो सकता है अभी भी हो, लेकिन मैंने देखा है कि लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से सोशल अगर आप जाना चाह रहे हो तो आप वहां पर अपने प्रोजेक्ट अपलोड करो। और अगर आप चाह रहे हो कि आपकी अपना पोर्टफोलियो या आप अपनी वेबसाइट हो तो आप बिहेंस और ड्रिबल यूज कर सकते ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। चलें, सारे क्वेश्चन आई थिंक दे हैव बीन आंसर्ड। जो एक मेन टेक मैं इसमें से लेके गया हूँ, जब आपने काम लेकर आना है तो वो ये है कि आप एक हाथ से काम करें और दूसरे हाथ से ढोल बजाएं। ढोल बजाएं कि आप काम कर रहे हैं, अपना काम दिखाएं जहाँ जहाँ पे दिखा सकते हैं, और ऑब्वियसली रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पे दिखाएं। तो आई थिंक सब क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। मैं तो इसी के साथ हम आज का जो हमारा वेबिनार है हम उसको रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच करीम फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने टाइम स्पेयर किया वीकेंड पे, हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि वीकडे में हमारी कोशिश थी, लेकिन वीकेंड पे जो है हमने आपको आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। मैं जो हैं। कलीम का जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इन केस आपकी कोई मजीद क्यूरी होती है, आप जो उनसे सेशन के बाद पे अपना काम शुरू करते हैं, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिससे आज जो आप डिस्कस करना चाहेंगे, तो आई शेयर द ईमेल। तो आगे जो उनसे है, अब वो कलीम की अपनी मर्जी है कि इफ यू वांट्स टू हैव अ कॉल विद यू, गूगल मीट करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप पे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आई नॉट शेयर हिज नंबर। लेकिन ईमेल पे जो उनसे यू कैन रीच आउट टू हिम। उसके आगे जो उनसे है आपको, कि आप जो कॉन्वर्सेशन जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लेके जाते हैं उस पर वैसे लेके चले जाएंगे। थैंक यू सो मच कलीम। थैंक यू टू द ऑडियंस। एंड इसी के साथ फिर हम जो सेमिनार है उसको क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।